भारतीय वुमेन्स टीम के मिशन T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हार के साथ हुई। न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया से कहां हुई चूक, शो में जानेंगे खुद जेमिमा रॉड्रिक्स से। Playing at number 4, I think it's not much change for me in my mindset because I know with my game I'm ready to bat anywhere the team wants me to bat and I'm ready to do the job. दुबई की पिच पर आखिर क्यों काम नहीं आई 3 पेसर्स वाली रणनीति, शो में बताएंगे हमारे एक्सपर्ट संजय मांजरेकर। मुझे लगता है कि शुरुआत में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई। आई थॉट जिस तरह से शुरुआत हुई ग्लिमर और सूजी बेक्स की, भारतीय फैंस को हमारी वुमेन्स टीम से जो उम्मीदें थीं, नतीजा उसके बिल्कुल उलट रहा। दुबई में भारतीय वुमेन्स टीम के मिशन T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हार के साथ करनी पड़ी। न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली हार के इस पूरे विश्लेषण और अपडेट के साथ एक बार हम फिर हाजिर हैं। नमस्कार, फॉलो द ब्लूज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। कल पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड के हाथों 58 रनों से मिली हार के बाद भारतीय टीम का अगला मुकाबला 6 अक्टूबर को ग्रेटेस्ट राइवल पाकिस्तान से होगा। तो 9 अक्टूबर को एशिया कप 2024 की चैंपियन श्रीलंका से होगा सामना। वहीं भारतीय वुमेन्स टीम अपने आखिरी लीग मुकाबले में 13 अक्टूबर को अपने टफेस्ट राइवल ऑस्ट्रेलिया से टकराएगी। भारतीय वुमेन्स टीम के मिशन T20 वर्ल्ड कप का आगाज अच्छा नहीं हुआ। न्यूजीलैंड के हाथों मिली बड़ी हार के बाद आखिर टीम इंडिया से कहां चूक हुई, जेमिमा रॉड्रिक्स ने हमारे हॉट टेक में बताया। We knew that any team will come hard at us and yeah, I think they came out with a lot of intent. We did create opportunities, but unfortunately we didn't make the most of them. But I think then the way we came back after the start was, I mean, not many positives in this game, but still going forward, I think we need to have the right approach because the tournament's not over. We need to take some positives from this game and a lot of learnings from this game because the tournament's not over. Playing at number 4, I think it's not much change for me in my mindset because I know with my game I'm ready to bat anywhere the team wants me to bat and I'm ready to do the job. Today, because I was batting well, I had some form going on even in the warm-up games. It was my responsibility that I should have made sure we build a partnership after losing wickets. So I think again today would be the game we would like to forget because this is a World Cup. We need to keep moving on and keep picking ourselves up. We can't stay stuck at this game. We need to pick ourselves up and I think that will show the character of this team. I think what we have been doing really well as a team is just sticking to the process and doing whatever it takes, one game at a time. We know every game from here is so crucial for us. We know that, but at the same time we're going to go one game at a time and just make sure we stick to our process and do our job well. And I think if we can do that, I think if we play our best cricket, I think we can win matches. Yes, like you said, it's not the easiest of conditions. It's really hot here in Dubai. But I think we've gotten enough time to get used to the conditions. So we don't want to give an excuse it's too hot or whatever it is. I think we just need to do our job and, win the match for the team. So when it comes to conditions, I think we are very used to the conditions. It's gotten better from the first day we've come here. So I think we are very prepared for this and we kind of all of us stay in India. So we are very familiar to such conditions. So I think everyone has done their job well. We know how important Amelia Kerr's wicket is, and yes, at that moment it felt a little, why didn't it go in our favor? But at the same time, I think we did what we can. We spoke to the umpire, like I said, then we had to accept the decision of the umpire and move on. So I think that's what we did really well, that we, just moved on from that, and I think we got her out pretty soon, so that worked for us. न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मुकाबले में मिली हार के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल टीम कॉम्बिनेशन को लेकर है। आने वाले मुकाबलों में क्या होनी चाहिए भारतीय टीम की रणनीति, जानिए हमारे एक्सपर्ट से। मुझे लगता है कि
शुरुआत में ही थोड़ी सी गड़बड़ी हुई। आई थॉट जिस तरह से शुरुआत हुई ग्लिमर और सूजी बेस की, जिस तरह से उन्होंने प्रेशर डाला भारतीय गेंदबाजों के ऊपर, स्टेप आउट होकर जब चौके मारे उन्होंने और बड़े एक्सपेंसिव ओवर्स हुए, और जब तक भारत इस मैच को संभाल कर थोड़ा सा कंट्रोल पाता, शायद थोड़ा लेट हो गया। वस्त्राकर का रोल सिर्फ सीन का नहीं है, मुझे लगता है कि ज़्यादा वो वेंटी पर निर्भर होते हैं सीन डालने के लिए। लेकिन दाद देने होगी न्यूजीलैंड को, एक रणनीति के साथ आए कि अंडर प्रेशर डाले। इंडिया की थोड़ी सी वीक लिंक है सीम, उनका मेन जोर स्पिन की तरफ है, तो 3 सीमर्स भी अगर खिलाए तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि चौकटे होना चाहिए, क्योंकि इस तरह का प्रेशर बाकी टीमें देखकर भारत के ऊपर ट्राई करेंगे। एक तो स्कोर बहुत ज़्यादा हो गया था, 160 के ऊपर एक स्कोर गया, तो इस तरह का पिच है और सीधी बाउंड्री काफ़ी लंबी थी, तो सोफी डिवाइन ने भारत से ये मैच थोड़ा दूर लेके गया। और उसके बाद जो ड्यू फैक्टर से बल्लेबाजी आसान होनी चाहिए थी वो हुई नहीं, और बहुत ही चालाकी गेंदबाजी न्यूजीलैंड ने चालाक तरीके से आगे डाला, स्लो डाला, और एक बड़ी गलती जो ऑलमोस्ट एवरी बैटर ने की भारत की तरफ से कि सीधा सीधा मारने गए, हवा में मारने गए, और वहाँ पर ज़्यादा विकेट गिरे, क्योंकि इस पिच के ऊपर इस तरह का टारगेट था। ज़्यादा अगर रनिंग की तो विकेट करते 1-1, 2-2 रन, और अगर चौके मारते थे तो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल बैक शॉट ले, तो सीधा मार के रन बनाने की कोशिश की बड़े शॉट्स के लिए, वहाँ पर एक बड़ी। फॉलो द ब्लूज के हमारे इस एपिसोड में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन #फॉलो द ब्लूज के साथ सोशल मीडिया पर अपने राय और विचार देना बिल्कुल ना भूलें। कल सुबह 9 बजे स्टार स्पोर्ट्स पर फॉलो द ब्लूज के नए एपिसोड के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। अभी के लिए अलविदा।